ملت عباسیہ ہو سوا پائندگی تیری صدا زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے ملت عباسیہ ہو سوا پائندگی تیری صدا زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو سلام، وطنی عزیز سے دو دیار غیر میں جو لوگ ہیں ان کو دل کی گہرائی سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ محترم ناظرین، کیمرے میں جن شخصیات کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ارشد عباسی صاحب ہیں، انجمن اتحاد عباسیہ آزاد کشمیر زون کے یہ صدر ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری عہدوں پر رہے ہیں، خاصا ایکسپیرینس ہے ان کا سوسائٹی میں۔ بات یہ ہے کہ 4 جون 2023 کو انجمن اتحاد عباسیہ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں جو عباسی خاندان کے بڑے لوگ تھے ان کے اعزاز میں، ان کے ایصال ثواب کے لیے تقریب منعقد ہو رہی ہے چمن کوٹ تحصیل دیرکوٹ ڈسٹرکٹ با آزاد کشمیر میں۔ اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ انجمن اتحاد عباسیہ بنی کیوں ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے لیے ارشد عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کے مختصر تاثرات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ارشد صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو سکوں۔ انصر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ انجمن اتحاد عباسیہ کے مقاصد کیا ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے نائب صدر سردار افتخار عباسی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہماری جو تنظیم ہے یہ خالصتاً ایک غیر سیاسی اور غیر مسلکی تنظیم ہے، یہ سماجی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، اور اس تنظیم کے جو ٹارگٹ ایریاز ہیں وہ ہیں تعلیم، ہیلتھ اور سوشل سیکٹر۔ ہم ان 3 سیکٹر میں لوگوں کے لیے جو ہے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ہماری نسل جو ہے اس کو تعلیم سے جو ہے آراستہ کریں، چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے اور ریاست میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ریسورس لیس ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ اس وجہ سے ہمارا بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تنظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے وہ بچے جو ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے جو ضائع ہو جاتا ہے ٹیلنٹ ہمارا، ان بچوں کے لیے ہم کوئی ایسا نظام، ایسا میکانزم وضع کریں کہ وہ بچے ان کو ہم تعلیم دلوا سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 2 سال سے، یہ تنظیم تو ہماری بڑے عرصے سے کام کری ہے، لیکن ہم 2 سال سے اس سیکٹر میں، تعلیم کے سیکٹر میں ہم نے کام شروع کیا ہے۔ اور لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 5 بچوں کو جو بہت اچھے نمبر لے کے پاس ہوئے تھے لیکن یونیورسٹیز میں جانے کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اور اگر یہ تنظیم ان کی ہیلپ نہ کرتی تو ٹیلنٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور 5 بچوں کو ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور دیگر یونیورسٹیز میں ہم نے ایڈمیشن کروایا، اور الحمدللہ اس وقت ان کا دوسرا سال چل رہا ہے۔ وہ بچے بہت اچھے جو ہے وہ رزلٹس دے رہے ہیں، اپنے تعلیمی کیریئر کو مکمل کر رہے ہیں۔ اچھا ارشد عباسی صاحب، ایک امپارٹنٹ سوال ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھکھا ویلفیئر ایسوسیشن چل رہی ہے، راجہ اعجاز صاحب اور ان کے کچھ ساتھی اس ویلفیئر کے آرگنائزر ہیں اور بہت بخوبی کام کریں۔ ان کا مشن یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم تعلیم کو عام کریں، اور کہیں کوئی مسائل کا شکار ہے تو اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ ویسے اوورآل جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں مختلف برادریوں کا گلدستہ رہتا ہے، تو کہیں سے یہ میسج نہیں جائے گا کہ بھائی کہیں سے انجمن اتحاد عباسیہ بن رہا ہے یا کھکھا ویلفیئر راجپوتوں کی جو ویلفیئر ہے وہ بن رہی ہے، تو کہیں سے دوسری برادریاں ڈسہارٹ نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ میں نے انصر صاحب پہلے گزارش کی ہے کہ ہماری تنظیم پہلی بنیاد جو ہے اس کی یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی ہے اور غیر مسلکی ہے۔ اس میں تمام جو پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں اور تمام برادریوں کے لوگ اس میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے چونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں شامل تھے، اس میں ساری برادریوں کے لوگ موجود تھے۔ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے اور سماجی تنظیم ہے۔ یہ سماج کی لیے جو اپنے خدمات پیش کرنا چاہتی ہے،
जो बाकी तंजीमें भी हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं। अगर कोई तंजीम बनी है, किसी बरादरी की तंजीम बनी है, इस बुनियाद पर बनी है कि वो सोशल वर्क करेगी, लोगों की तालीम के लिए काम करी, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब हम सारी तंजीमें वेल ऑर्गेनाइज हो जाएँ तो हम एक क्लस्टर बना के भी सारे इकट्ठे मिल के भी काम कर सकते हैं। हम सारे एक जगह के रहने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इस तंजीम का मकसद सिर्फ कबीले के बच्चों के लिए नहीं काम करना, बल्कि तमाम वो बच्चे, रियासत जम्मू कश्मीर के सारे वो बच्चे जो अपने वसाइल ना होने की वजह से तालीम से महरूम हो जाते हैं, उन सब के लिए हम काम करें। ये अलग बात है कि पहले फिर अपने घर को ठीक करना होता है और घर से ही आगाज़ होता है। मैं अगर किसी और जगह बैठ के काम करूँ या दूसरा कोई आ जगह मारे तो उसको शायद पजीराई हासिल ना हो सके, तो पहले घर से आगाज़ हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला खखा जो बरादरी है वो भी हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। दीगर सारी हम एक जगह के रहने वाले लोग हैं और सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। हमारे आपस में रिश्ते हैं, ताल्लुक़ हैं, हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वो भी अगर तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और किसी वक्त मैंने जैसे आपको कहा है, किसी वक्त हम सारे जब ऊपर लेवल पे हम इस काबिल हो जाएंगे, अभी तो सारी इब्तदा है, अब हम काम शुरू करें, लेकिन किसी वक्त हम इस काबिल हो गए तो हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे मिलके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अच्छा अब भाई साहब 4 जून के जो आपका प्रोग्राम है चमन कोट तहसील दिलकोट डिस्ट्रिक्ट आज़ाद किश्त में, इस बार कौन से बड़े लोग आपकी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो इस दफ़ा 4 जून का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी नामवर शख्सियात पहले भी आई थी और इस दफ़ा भी आ रही हैं। इसमें शायद फ़कान अब्बासी साहब आएंगे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब आएंगे, सिंध से फहमीदा मिर्ज़ा साहब आएंगी, नवाब ऑफ बहावलपुर तशरीफ़ लाएंगे, और इसी तरीके से बेशुमार नाम हैं जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स के अंदर या दीगर शोबों के अंदर, वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से तकरीबन 300 के करीब लोग, पाकिस्तान के चारों सूबों से, सूबा बलूचिस्तान से, सूबा सिंध से, सूबा पंजाब से और सूबा KPK से 300 के करीब लोग यहाँ पे, अभी तक जो हमें इतला जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई, 300 के करीब लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा अब भाई साहब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आप आज़ाद कश्मीर जोन के सदर बने हुए आपको 1 साल का अरसा गुजर गया है, 1 साल में आपने क्या कारनामा सर? मैंने आपको गुजारिश करूं कि चूँकि मेरा बिल्कुल 1 साल का अरसा गुजरा और ये सवाल मुझे आपने उस वक्त पूछा कि देखेंगे आप क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले गुजारिश की कि अभी तुम्हारी तंजीम की इब्तिदा है और 1 साल के अरसे में ये किया कि पिछली दफ़ा से दुगना प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये एक इसमें अवेयरनेस भी ज़रूरी है। ये मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और मैं अपने जो सामीन हैं, जो अपने दोस्त हज़रात हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर, उनसे भी मुखातिब हो रहा हूँ कि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस होकर लोगों को पता चल सके कि ये तंजीम करना क्या चाहती है। ये कि आपने देखा होगा कि हमारे दादाजी का मज़ार जो है, आपके भी दादाजी हैं वो, तो उनका मकबरा जो है वो नहीं बना हुआ था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मकबरे की तामीर का इस तंजीम ने काम शुरू कर दिया और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोग मज़ीद उस मकबरे के लिए, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी की भी हम बुनियाद रखने वाले हैं। इस दफ़ा हम बुनियाद रखेंगे और लाइब्रेरी भी वहाँ बनेगी, वही बल्कि मरकज़ होगा। ये जो हमारी तालीमी शोबा है इसमें काम करने का, वो मरकज़ होगा। और इसके अलावा दूसरा शोबा जो है वो हेल्थ का शोबा है। बेशुमार लोग, आपको पता है कि वसाइल ना होने की वजह से, इलाज ना होने की वजह से मुतासर होकर दुनिया से चले जाते हैं। तो हमारी तंजीम का ये मिशन भी है कि ऐसे लोग जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं, अगर कहीं कोई बीमार हो जाता है तो हम उसकी मदद करें। तीसरा बड़ा एक सोशल सेक्टर है, उसके भी बेशुमार इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा सेक्टर मैं समझता हूँ उसमें मतलब नादार लोग हैं, उन लोगों की बच्चों की शादी के इश्यूज़ होते हैं, उस बेशुमार घरेलू इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी ये तंजीम अपना रोल प्ले करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुस्तक़बिल में उस मामले में भी हम लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त खड़े होंगे। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि नेक्स्ट सवाल में करूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड 5 ख़ानदान हैं, उनमें अब्बासी सादात हैं, नामी ग्रामी लोग हैं जो या ख़ास करके आज़ाद कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं। मेरा एक सवाल है कि हम अल्लाह के नबी के ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, रिश्ता है, क्या हम उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी है? कहने को तो हम अब्बासी हैं, सादात हैं, लेकिन क्या सोसाइटी में हमारा रोल, हमारा इखलाक ऐसा है कि लोग हमसे इम्प्रेस हैं या हमसे दूर भाग रहे हैं? क्या हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं? क्या हमारा करैक्टर ऐसा है, जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्या हम उस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अच्छा अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वसलाम। इफ्तिखार साहब, जैसा कि आप नायब सदर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासी आज़ाद कश्मीर की, आप क्या पैगाम देंगे? मैं जो बात जो अरशद साहब ने माशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से बता दिया इसके क्या मकासद हैं इस अंजुमन के, तो इस वक्त यही हमारे मकासद यही है कि हम सबसे पहले तो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान की चारों सूबों की एक जंजीर है जो, और इसके साथ आज़ाद कश्मीर भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारा तल्लक वास्ता पैदा हो गया है, और उसके बाद हमारी कोशिश यही है कि ये गैर सियासी तंजीम रहेगी, वेलफेयर का काम हमने करना है। जैसे खिदमत है, एदी ट्रस्ट हुआ करता था, इस तरह की तंजीम बना के हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। अच्छा आशिफ साहब, जाते जाते आप पैगाम क्या देंगे, ख़ास करके 4 जून के हवाले से, और ओवरऑल जो है जिस तरह से मैंने एक सवाल उठाया है कि जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम निभा रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आपने अगर पिछली बार की मेरी आपने स्पीच सुनी हो तो मैंने कहा था ये जो सादात हैं, ये जो अवान हैं और ये अब्बासी हैं, ये एक ही कबीला है, ये बनो हाशिम कबीला है, और ये कबीले को अल्लाह पाक ने बड़ी फजीलत अता की। इस कबीले को अल्लाह पाक ने खाना काबा का मुतवल्ली बनाया, और इसी कबीले से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हमें अपने किरदार से साबित करना चाहिए कि हम उस कबीले से तल्लुक़ रखते हैं। यही काम, ये तंजीम जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासी, अपने नाम से जिस तरह आप इसको समझ रहे हैं कि ये इत्तेहाद के लिए तंजीम बनाई गई, तो यही इसका काम बुनियादी तौर पर ये भी एक काम है कि हम लोगों की करैक्टर बिल्डिंग भी कर सकें। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर शफ़क़त अब्बासी साहब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे गुजारिश करूँ कि डॉक्टर शफ़क़त साहब हमारे मरकज़ी कायद हैं। इस तंजीम के लिए उनकी बेशुमार, और कबीले के लिए उनकी बेशुमार खिदमात हैं। वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और पाकिस्तान में सिंध में एक वजारत के ओहदे पर भी रह चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं, और यकीन करें कि दिन रात लोगों की खिदमत में हाज़िर रहते हैं, और ये सारा प्रोग्राम उनकी क़यादत में हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान में लोगों के लिए हर वक्त वो हाज़िर रहते हैं। तो हम सारे उनके मशकूर हैं कि वो, उनकी एज 70 साल की है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़े अपनी टीम के साथ यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर की अब्बासी बरादरी उनकी शुक्रिया अदा करती है। जी मोहतरम नाज़रीन, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं